Namaskar दोस्तों, welcome to RAS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi. What do you think? Should India be called India or Bharat? It should be called Aryavarta or Meluha. We are going to talk about the many names of India and why India, that is Bharat, is extremely important from the perspective of this examination. Recently NCERT has told that Bharat and India, these two names will be used interchangeably, यानी कि इनको एक ही माना जाएगा यूज़ करते समय NCERT बुक्स में, ठीक है, so that people can know that India is actually a name that is given by a colonial power, an outside, a foreign power to India, while Bharat is somebody which is what we call ourselves, and a name which has been given to us by ourselves is much more important. There are many other names of India. There are many other names of India that is not known to you. Today we are going to talk about that only. However, India has a brand value. India, the word India in itself on the world map right now is shining. So how we are going to do that? Let's talk about it. Amidst the ongoing row over revised books, NCERT Director Dinesh Sakhlani, he has said that the words Bharat and India could be interchangeably used in them. That means if you are going to see Bharat, do not get disturbed. The committee has unanimously recommended that it should be used interchangeably. The name Bharat has been used in ancient texts such as the Vishnu Purana, which is 7,000 years old. Apart from that, we have many other names for our country. For example, Meluha, which is known in the Mesopotamian civilization. Apart from that, as the Indus Valley civilization was actually referred to as Meluha. Apart from that, Bharat actually appears in the Puranas. Apart from that, we have Bharat Varsha as well. This used to describe the land which is situated between the sea in the south and the abode of snow in the north, that is the Himalayas and the Indian Ocean. The Aryavarta also appears in Manusmriti. Our land was also known as Aryavarta, which is the land which is occupied by the Indo-Aryans. Thereafter, Jambudvipa has appeared in many Vedic texts and it is still used in South Asian countries to describe our subcontinent. Hind or Hindustan has been used by Persians to refer to as at the land beyond the Sindhu river. So S becomes H in their language, and that is why Hindustan or Hind. Apart from that, India actually was used by India for the first time ever was used by Greeks, who transliterated the word Hind or Indus, मतलब हिंद या इंडस से आया है. So Meluha, Jambudvip, Bharat, Aryavarta, Hind, Hindustan, these all are the many names of India or Bharat. So why do we choose to rename it? Let's talk about that. And have we ever thought, इससे पहले कि हमने कभी सोचा था कि हमें अपना नाम चेंज करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में बात करते हैं. जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में, यहाँ पे बहुत सारे डिफरिंग ओपिनियंस थे कि इंडिया को भारत कहना चाहिए या इंडिया कहना चाहिए. सेठ गोविंद दास जो जबलपुर से बिलोंग करते थे, वो चाहते थे कि भारत बोला जाए ना कि इंडिया. He said that इंडिया तो मेयर ट्रांसलेशन है ना, इंडिया तो एक्चुअली इंडिया नहीं भारत है. हरि विष्णु कामत ने बोला आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए, इन्होंने कंट्री का नाम चेंज कर लिया था जैसे ही इन्होंने अचीव किया था इंडिपेंडेंस. अब यहाँ पे भारत हम भी इस्तेमाल कर सकते थे. हरगोविंद पंत ने कहा कि पीपल वांटेड भारत वर्षा एंड रिजेक्टेड द टर्म इंडिया, जिसको फॉरेन रूलर्स ने कहा था. नाउ अगर हम बात करें इंडिया दैट इज़ भारत, तो उसका मेंशन कहाँ है? आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इंडिया को भारत भी बोला जा सकता है, यानी इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. अब इस पर दोनों नाम दिए गए हैं, इंडिया को भी यूज़ किया गया है और भारत को भी यूज़ किया गया है. भारत का संविधान, भारत का अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब ये हिंदी में इसका कन्वर्जन है. अपार्ट फ्रॉम दैट 58th अमेंडमेंट जो थी, इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इट वाज इनैक्टेड इन 1987. इस अमेंडमेंट ने एम्पावर किया था कि प्रेसिडेंट अगर निकालना चाहें तो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट के अंतर्गत भारत को भारत बोल सकते हैं. दिस अथॉरिटेटिव हिंदी वर्जन जो कॉन्स्टिट्यूशन का निकाला गया था, इसने लीगल प्रोसीडिंग्स, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, कुड बी यूज्ड इन लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि कल के दिन अगर नाम चेंज हुआ
यानी कि हम इसको भारत ही बोले, अपने देश को हमने भारत ही नाम दे दिया, इंडिया कहीं लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका, तो उसको साइट किया जा सकता है। आइडिया अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियंस कब हुआ, देखो गुलामी से पहले, हम गुलामी कर रहे थे जब, उससे पहले हम एज अ कंट्री यूनाइटेड नहीं थे। जैसे कि हमारे यहाँ आपको पता है बहुत सारे डिफरेंट डायनेस्टीज़ थे, कुछ रीजनल किंग्स थे। जब ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, उससे पहले भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग किंगडम्स थे, तो उनके लिए वो देश वो किंगडम तक ही सीमित था। दूसरे किंग का जहाँ से सीमा शुरू होती थी वहाँ पे उनका वो किंगडम और उनका वो देश हुआ करता था। एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश ने कॉमन पॉलिसी अपनाई बहुत सारे राज्यों में। वो कॉमन पॉलिसी सबके लिए नुकसानदायक साबित हुई। सबके अंदर एक भाव आया कि जो हम पे राज कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो 200 किलोमीटर दूर हो, वो एक ही हैं और वो एक ही तरह से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो वो नेशनल कॉन्शियसनेस जगाने के लिए बहुत वक्त लगा। इंडिया एज अ मॉडर्न कंट्री बहुत दिनों बाद बना। उससे पहले इंडिया एज अ लैंड एग्जिस्टेड, इंडिया एज अ कल्चरल geographical area existed, India as a social cultural group existed, India as an ancient civilization existed, but the modern nationalism, जो definition है modern nationalism की, कि common goals होने चाहिए, common shared history होनी चाहिए, common interest होने चाहिए, common endeavors होने चाहिए, वो ब्रिटिश के आने के बाद बना। जब हमें पता चला कि अरे ये हमें दबा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे प्रताड़ना हो रही है, तो वो नेशनल कॉन्शियसनेस बहुत समय बाद जागी। ठीक है, तो ये आइडिया एक सिंगल नेशन का जिसमें डाइवर्स पॉपुलेशन रह सकती है, ये इंडियन रेनेसां के थ्रू आया है। यहाँ पे एंशिएंट इंडिया रूट्स के बारे में बात की गई कि हमारे एंशिएंट इंडिया हिस्टोरिकली कितना रिच रहा है, कितने सारे इन्वेंशंस हमने किए थे, कितने सारे, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, उसको याद रखने की बात कही थी। फिर प्रोमिनेंट फिगर्स लाइक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा था कि सिंक्रेटिक टर्म्स हिंद आप यूज़ करिए, क्योंकि इसमें एक यूनिफाइंग फैक्टर है, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भी इसे एक जैसा व्यू करते हैं। फिर उसके बाद इमोटिव एक्सप्रेशन की बात करें, इमोटिव एक्सप्रेशन यानी कि जो इमोशंस दिखाया आपका, तो जय हिंद जय भारत ये इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है इमोशनल अवेयरनेस दिखाने की, कि मैं अपने देश के लिए कितना मर मिटने के लिए तैयार हूँ या कितनी मैं सैक्रिफाइसेस देने के लिए तैयार हूँ, जय हिंद जय भारत बोल के मैं बताने की कोशिश करती हूँ। इंटरनेशनल रिकग्निशन में इंडिया को जनरली इंडिया बोला जाता है, अगर बाकी कंट्रीज़ के एस्पेक्ट्स में बोले तो। वैसे ये जो टर्म इंडिया है, ये किसी भी जगह की नेटिव पॉपुलेशन को बताने के लिए कहा जाता है। नेटिव पॉपुलेशन जैसे कि यूएसए में रेड इंडियंस को बोला जाता है, तो कहीं की भी नेटिव पॉपुलेशन इंडियंस बोली जाती है, मतलब ये इंडियंस हैं, यहाँ नेटिव्स रहते, तो हम नेटिव्स हो गए फॉरेन पावर्स के लिए, इसीलिए ये टर्म आया इंडिया। रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ये जो वर्ड यूज़ हुआ था, इंडिया अलायंस ब्लॉक जो बनी थी, उसके बाद से इस पर्टिकुलर यू कैन कॉल इट टॉपिक ने बहुत ज़्यादा आग लगा दी एज इन सबको लगा कि इंडिया अगर भी कल के दिन एनडीए जीतती है तो इंडिया की हार होगी। तो इंडिया की हार मतलब द नेशन इन itself which has elected them to power will get defeated because of NDA. Now official usages की बात करें, कुछ official events में भारत नाम इस्तेमाल किया गया है in place of India। ठीक है, इसके political implications से basically ये ideology दिखाता था कि हम भारत कहना चाहते हैं या इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने कहा है कि यहाँ पे एक रिजेक्ट कर दिया था एक प्ली आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, जो चाहते थे इंडिया को भारत में बनाए, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी इस प्ली को। एनसीईआरटी अगर हम बात करें क्या है, ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्वतंत्र निकाय है ये, जो 1961 में बनाई गई थी। ये काम करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में कि स्कूल्स में किस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। ये अंडरटेक करती एड, प्रमोट और कोऑर्डिनेट करती रिसर्च इन द एरियाज़ ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये मॉडल टेक्स्ट बुक्स निकालती है, सप्लीमेंट्री निकालती है, न्यूज़लेटर्स, जर्नल्स और बाकी रिलेटेड लिटरेचर भी निकालती है। साथ ही साथ ये प्री सर्विस ऑर्गेनाइज करती है, इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स भी ऑर्गेनाइज करती है। ये डेवलप और डिसमिनेट करती है इनोवेटिव एजुकेशन टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ अलग अलग एनजीओज़, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट भी करती है। देयर आफ्टर इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ये क्या और करती है, क्लियरिंग हाउस ऑफ आइडियाज़ है, मतलब कुछ भी आइडियाज़ नए आते ये क्लियरिंग हाउस की तरह काम करती है कि होना चाहिए
वो आइडिया इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं। ये नोडल एजेंसी की तरह काम करती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को अप्लाई करने के लिए। सो आई होप आपको हमारी क्लास समझ में आई हो, आई होप हमारी क्लास अच्छी भी लगी हो। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें बेटा बहुत ज़रूरी है, तो आपको याद रखना है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें कि क्या क्या टैंजेंट्स उसमें पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। आई होप you stay connected with us, make possible, if you can make it possible, do it. Please share this with as many people as possible. Bye bye.